وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری ساری بہنوں کو السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. ابراہیم نے ان سے پوچھا اے رسولو تمہارا کیا مقصد ہے؟ وہ کہنے لگے ہم ایک مجرم قوم یعنی قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں جو حد سے بڑھنے والوں کے لیے آپ کے رب کے ہاں سے نشان زدہ ہیں. یہ ممکن ہی نہیں کہ ان نشان زدہ پتھروں سے کوئی مجرم بچ جائے کیونکہ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کو جا کر اس میں لگنا تھا. ہم نے وہاں جتنے مومن تھے ان کو وہاں سے نکال دیا. ہم نے وہاں ایک گھر کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا یعنی حضرت لوط کا گھرانہ. یہ کل 13 افراد تھے جو بچے اور ہم نے اس میں نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. یہ نشانی آج بھی ڈیڈ سی کی صورت میں موجود ہے. اس کی نحوست آج بھی موجود ہے کہ اس سمندر میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی. یہ ڈیڈ سی یا بحیرہ مردار اردن میں پایا جاتا ہے. اور موسیٰ میں ہم نے نشانی چھوڑی جب ہم نے اس کی طرف فرعون کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا.
उसने अपनी ताकत के बल पर सरताबी की और उसने कहा ये जादूगर है या दीवाना है। हमने उसे और उसके लश्करों को पकड़ लिया, समंदर में फेंक दिया और बहेरा कुलसम में गरक कर दिया और वो मुलामत के काबिल था। और कौम आद में भी एक निशानी है, जब हमने उनके ऊपर एक तबाहकुन आंधी छोड़ दी जो कि जिस चीज पर भी गुजरती थी उसे हड्डी की तरह चिकना चूर कर देती थी। ये ठंडी यख तूफानी आंधी मुसलसल 7 रातें और 8 दिन तक चलती रही और इसने कौम आद जैसे ताकतवर लोगों को पटख कर रख दिया। और समूद में भी निशानी है, जब उनसे कहा गया था एक खास वक्त तक फायदा उठा लो, उन्होंने अपने रब के हुक्म से नाफरमानी की, सरकशी की, उनको कड़क ने आ लिया और वो देख रहे थे। फिर ना तो उनमें खड़े होने की ताकत रह गई और ना ही वो बदला ले सकते थे। और कौम नूह को हमने इससे कबल गरक कर दिया था। बेशक वो तो नाफरमान लोग थे। और आसमान को हमने अपने हाथ से बनाया और हम इसको वसी करते चले जा रहे हैं। और जमीन को हमने बिछाया और हम इसको कैसा अच्छा बिछाने वाले हैं। कायनात जितनी आज मौजूद है, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला इसको वसी करते जा रहे हैं। व इन्ना लमूसिऊन का यही माना है। आजकल हमें साइंसदानों ने बताया है कि जितनी कोई कक्षा दूर है वो उतनी ही तेज रफ्तारी से मजीद दूर होती चली जा रही है। एक दिन मैंने आपको पहले भी बड़ी डिटेल से बताया था कि जैसा हमारा सोलर सिस्टम है, ऐसे हजारों लाखों सोलर सिस्टम हमारी कायनात में मौजूद हैं। बहुत से ऐसे सितारे हैं जिनकी रोशनी हमारे पास कई लाख मिलियन साल, कई लाख नूरी सालों के बाद हम तक पहुंचती है। तो ये जितनी साइंस तरक्की करती जा रही है उतनी कायनात के वुसअत के बारे में हमें ज्यादा खबरें मिलती जा रही हैं। कुरान मजीद ने तो हमें बता दिया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आसमान को हमने बनाया और हम इसको वसी करते चले जा रहे हैं। और जमीन को हमने बिछाया तो हम कैसे अच्छे बिछाने वाले हैं। हमने हर चीज के जोड़े पैदा कर दिए ताकि तुम नसीहत हासिल करो। हजारों साल कबल जब कुरान नाजिल हुआ तो उस वक्त नबातात के इल्म में इतनी तरक्की नहीं हुई थी। आज साइंसदान अपने तजर्बे की बिना पर यकीन रखते हैं कि तमाम नबातात में नर और मादा होते हैं और ये फल ऐसे पौधों से हासिल होते हैं जिनमें जिनसी अमल पाया जाता है। ये चीजें एक मुसलमान के दिल में ईमान को मजीद तकवीयत देती हैं और एक काफिर के लिए मजीद हुज्जत मुहैया करती हैं। तो तुम अल्लाह की तरफ दौड़ कर आओ। मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक वाज़े डराने वाला हूँ। अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद ना पुकारो। मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से साफ साफ डरा रहा हूँ। इसी तरह इनसे पहले जो भी रसूल आया था, इन लोगों ने यही कहा, ये साहिर है या दीवाना है। क्या ये लोग इस बात की एक दूसरे को वसीयत करते चले आ रहे हैं, बल्कि ये सरकश लोग हैं। अंबिया के साथ उनकी कौमों के सलूक से ऐसा मालूम होता है जैसे पहली कौमें आइंदा आने वाली नस्लों को वसीयत करके जाती रही हैं कि जब तुम्हारे यहाँ रसूल आए तो तुम उन्हें साहिर और मजनू कह देना। बल्कि असल बात यह है कि ये सरकश लोग हैं। आप इनकी परवाह न कीजिए, आप पर कोई इल्जाम नहीं और नसीहत कीजिए। नसीहत मोमिनों को फायदा देती है, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो नेक रूहें कौन सी हैं जिनको नसीहत ने फायदा देना है। आप इनको अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहिए। और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया था ताकि वो मेरी इबादत करें। ये नस्से कतई है कि इस कायनात में जिन्नों इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है? रब की इबादत। बाद लोग ये बावर कराते हैं कि कायनात की तख्लीक का मकसद आपकी जात है और उसके लिए वो एक मौजू हदीस को सामने रख लेते हैं, लौला का लमा खलक़तुल अफलाक। ए नबी, अगर आप ना होते
تو मैं ये कायनात पैदा ना करता। वो हदीस मौजू है। कुरान मजीद ने हमें कायनात की तख्लीक का मकसद क्या बताया है कि अल्लाह ताला ने जिन्न और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया था। मैं उनसे रिज़्क नहीं चाहता और मैं ये भी नहीं चाहता कि वो मुझे खिलाएं, क्योंकि अल्लाह ताला तो खुद सबको रिज़्क देने वाला है, बड़ी कुव्वत वाला है, बड़ा जबरदस्त है। तो इन जालिमों के लिए गुनाहों का अजाब होगा, जैसा कि इनके साथियों को अजाब मिला, पहली कौमों को। तो ये लोग अजाब के लिए जल्दी ना मचाएं। कुफर करने वालों के लिए उस दिन तबाही होगी जिस दिन से उनको डराया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरत तूर का आगाज कर रहे हैं। वत्तूर व किताबिम मस्तूर फी रक्किम मंशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़्फ़िल मरफ़ू वल बहरिल मस्जूर इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। तूर की कसम, लिखी हुई किताब की कसम जो खुले सहीफों में है। तूर से मुराद कोहे तूर, जहाँ पे हजरत मूसा को वही हुई थी और जहाँ पे हजरत मूसा को तौरात अता की गई थी। लिखी हुई किताब से मुराद तौरात है, उसकी कसम जो कि खुले सहीफों, खुले सफहात में है। और बैत मामूर की कसम, मामूर से मुराद है आबाद और बरा हुआ। दुनिया के बैतुल्लाह के बिल्कुल ऊपर फरिश्तों के लिए एक घर उनकी इबादत के लिए बनाया गया है और ये फरिश्तों से हर वक्त आबाद रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत जिब्रील ने मेराज के दौरान बताया ये बैत मामूर है और इसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं। जब एक दफा वहां से निकलते हैं तो दोबारा कयामत तक उनकी बारी नहीं आती। बैत मामूर की कसम, ऊंची छत यानी आसमान की कसम, जोश मारते हुए समंदर की कसम, तेरे रब का अजाब वाक़े होकर रहेगा। इन 5 चीजों की कसम खाकर फरमाया कि अजाब वाक़े होकर रहेगा। ये तमाम अशिया अल्लाह ताला की कुदरत की दलील हैं। कयामत लाज़मन आएगी और अजाब वाक़े होगा, उसको कोई रोकने वाला ना होगा। उस दिन आसमान तेजी से लरसने लगेगा, पहाड़ तेजी उड़ते फिरेंगे। आज जो पहाड़ दुनिया की सबसे ज्यादा सख्त मखलूक हैं, क़यामत वाले दिन रूई के गालों की तरह और उड़ते हुए गुबार की तरह उड़ेंगे। उस दिन को जुठलाने वालों के लिए तबाही है। वो लोग जो अपनी बहसों में खेल रहे हैं, उस दिन उन्हें धक्के देकर दोज़ख की आग की तरफ चलाया जाएगा। ये वो आग है जिसे तुम जुठलाया करते थे। अब बताओ, क्या ये जादू है या तुम्हें नजर नहीं आता? दुनिया में तो तुम्हें जुठला देते थे। ये आग है, दिख रही है तुम्हें कि नहीं? या अब भी तुम इसे जादू ही कहोगे? इसमें दाखिल हो जाओ, तुम सबर करो या ना सबर करो, तुम्हारे लिए बराबर है। तुम्हें वही बदला दिया जाएगा जो तुम अमल करते थे। बेशक मुत्तकीन जन बागात में और नेमतों में होंगे, मजे उड़ा रहे होंगे जो उनके रब ने उन्हें दिया था और उनका रब उन्हें दोज़ख के अजाब से बचा लेगा। खाओ और पियो, मजे उड़ाओ मजे मजे से, इस वजह से जो तुम अमल करते थे। वो कितार दर कितार तख्तों पर तकिए लगाए होंगे और हम उन्हें बड़ी आंखों वाली हूरों से ब्याह देंगे। और वो लोग जो ईमान लाए और उनकी औलाद ने ईमान में उनकी पैरवी की, हम उनकी औलाद को उनके साथ मिला देंगे और हम उनके अमल में से कुछ भी कमी ना करेंगे। पीछे 2-3 जगह पर हम ये भी पढ़कर आ चुके हैं कि अल्लाह ताला वालिदैन और औलाद और मियाँ बीवी को भी इकट्ठा कर देंगे। हर शख्स अपने अमलों के सबब गिरवी है। गिरवी होने का मतलब ये है, अगर वह नेक अमल करेगा तो अपने नफ्स को दोज़ख के अजाब से छुड़ा लेगा और अगर उसने नेक अमल न किए तो फिर दोज़ख के अजाब में उसकी जान गिरफ्तार रहेगी। और हम उनको फल और गोश्त और जो वो चाहेंगे वो देते चले जाएंगे। वो लपक लपक कर एक दूसरे से शराब का जाम लेंगे, जिसमें ना तो कोई लगव बात होगी और ना गुनाह की बात होगी। वो सिर्फ खुश तभी के लिए
लपक लपक कर शराब के जामों की छीना जब्ती करेंगे। ये खतरा नहीं होगा कि कहीं शराब खत्म ना हो जाए, और उस शराब में ना तो कोई लगव बात होगी, न गुनाह की बात होगी। वो शराब पीकर इंसान की अकल पर पर्दा भी नहीं पड़ेगा, और उनके ऊपर ऐसे लड़के चक्कर लगाते रहेंगे जो कि इतने खूबसूरत होंगे जैसे छुपाए हुए मोती, जिनके जिनके खादिम इतने खूबसूरत होंगे तो वो मालिक कितने खूब चमक धमक रहे होंगे। और उनमें से एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होगा और एक दूसरे से सवाल पूछेंगे। वो कहेंगे, बेशक हम इससे कबल अपने घरों में अल्लाह से डरा करते थे, अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें लू के अजाब से बचा लिया। हम दुनिया में अल्लाह को पुकारा करते थे, बेशक अल्लाह बड़ा एहसान करने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। ए नबी, आप नसीहत करते रहिए। आप अपने रब के फजल के साथ ना तो काहिन हैं ना मजनू हैं। वो कहते हैं ये शायर हैं, हम इसके बारे में गर्दश अय्याम का इंतजार कर रहे हैं। ए नबी, इनसे कहो, अच्छा तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। या उनकी अक्लें उनको ये ऐसी बातें करने का हुक्म देती हैं। असल बात यह है कि ये लोग सरकश हैं। आपको कभी शायर, कभी मजनू, कभी काहिन, कभी साहिर की इल्जाम तराशी करते हैं। क्या उनकी अक्लें उन्हें ये समझाती हैं? बिल्कुल नहीं। अपनी निजी महफिलों में उन्हें एतराफ था कि आपका इखलाक बहुत बुलंद है, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये महज उनकी सरकशी थी जो उन्हें ऐसे इल्जामात लगाने पर उभारती थी। या वो कहते हैं इसने से गढ़ लिया, बल्कि असल बात यह है कि वो इस पर ईमान नहीं लाते। अच्छा, अगर गढ़ लिया है तो वो भी एक ऐसी ही बात, ऐसा ही कलाम बना लाएं अगर वो अपने इस इल्जाम में सच्चे हैं। इस इल्जाम का जवाब कुरान मजीद में बेशुमार पहलुओं से दिया गया है। उन्हें पता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी फर्द के खिलाफ झूठ नहीं बोला, तो वो क्या इस हद तक बढ़ जाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पर वो झूठ बांध दे। दूसरा, उनको चैलेंज दे दिया गया कि अगर अल्लाह के रसूल ने से खुद गढ़ लिया है तो तुम भी ऐसा से कलाम गढ़ लो। ये चैलेंज कुरान मजीद में आज भी 5 जगह पर मौजूद है और कुफार इसका जवाब न दे सके थे। या वो किसी चीज के बगैर खुद ही पैदा हो गए हैं, या वो अपने खालिक खुद हैं, या उन्होंने जमीन और आसमान को पैदा किया है। असल बात ये है कि वो यकीन ही नहीं रखते। या उनके पास तेरे रब की रहमत के खजाने हैं, या वो उन खजानों के दारोगा हैं इसलिए वो ईमान नहीं लाते, या उनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर वो आलमे बाला की बातें सुनते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो उनका क्यों बातें सुनने वाला वाज़े दलील लेकर आए और वो बताए कि अल्लाह ताला ने ऐसा हुक्म दिया है कि अल्लाह ताला ने उन्हें बताया है कि अल्लाह ने कोई नबी नहीं भेजा। या उनके लिए बेटियां हैं और अल्लाह के लिए बेटियां हैं और उनके लिए बेटे हैं। या आप उनसे कोई अजर का सवाल करते हैं तो वो जिसके तावान से ये दबे चले जा रहे हैं, ये इसलिए आपकी दावत कबूल नहीं करते कि आप उनसे फीस मांगते हैं और उजरत मांगते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी दावत को कबूल नहीं कर रहे। या इनके पास गैब है जिसके साथ वो लिख रहे हैं, इनके पास गैब की खबरें हैं कि इनको अल्लाह की तरफ से कभी भी सजा नहीं दी जाएगी। इस वजह से ये इतने नडर और बेखौफ हो गए हैं। या वो कोई चाल चलना चाहते हैं तो वो लोग जो काफिर हैं वो तो अपनी चाल में खुद ही फंस जाएंगे। या इनका अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है जिसके बारे में उनका गुमान है कि जब हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे अजाब आएगा तो वो तो हमें बचा लेंगे। अल्लाह उन तमाम बातों से पाक है, उन तमाम शरीकों से पाक है जो वो उसके शरीक ठहराते हैं। और इन लोगों की हालत ये है कि अगर ये आसमान से कोई गिरता हुआ टुकड़ा भी देख लें तो ये कह देंगे ये तो तय बतय बादल हैं, आप उनको ए नबी छोड़ दीजिए, हत्ता कि वो अपने उस दिन को जा मिले जिसमें ये बेहोश होकर गिर पड़ेंगे।
जिस दिन उनकी कोई चाल काम नहीं आएगी और ना ही इनको मदद दी जाएगी। ये पेशीन गोई मक्की दौर में उस वक़्त की गई जिस वक़्त मुसलमान जुल्म की चक्की में बुरी तरह पिस रहे थे। और बेशक इन जालिमों के लिए आखिरत के अजाब के अलावा दुनिया में भी अजाब होगा, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। आप अपने रब का हुक्म आने तक सब्र कीजिए। आप हमारी आंखों के सामने हैं, ए नबी, हम आपको देखते रहते हैं। हमें पता है कुफारे मक्का आपके साथ क्या ज्यादतियां कर रहे हैं, आपको क्या बातें बना रहे हैं, आपके सहाबा पर कौन से जुल्म कर रहे हैं। हम इन चीजों से गाफिल नहीं हैं और जब मुनासिब समझेंगे हम इनको अच्छी तरह समझ लेंगे। आप हमारी आंखों के सामने हैं। आप अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए जब भी आप खड़े हों, रात को भी तस्बीह कीजिए और सितारों के गरूब होने के वक्त भी, सितारों के गरूब होने का वक्त जो है फजर का वक्त है, उस वक्त भी अल्लाह को याद कीजिए, फजर की नमाज अदा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन नज्म वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा। सितारे की कसम, जब वो डूबने लगे तुम्हारे साथी ना तो राह भूले हैं और ना भटके हैं, और वो अपनी ख्वाहिश से कुछ भी नहीं कहते। ये तो एक वही होती है जो उनकी तरफ की जाती है। अल्लाह ताला ने गवाही दे दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान से जो भी बोलते हैं वो सच ही होता है। आपने खुद फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी जबान से कभी भी कोई बात हक के सिवा नहीं निकली, लिहाजा अहादीस हुज्जत हैं। बल्कि आप अगर किसी मौके पर आपने कोई अमल होते देखा और आप खामोश रह गए, आपने उस अमल से मना नहीं किया, आपकी ये खामोशी भी हुज्जत है कि वो अमल जायज था। ऐसी हदीस को हदीस तकरीरी कहते हैं। आपका जबान से हुक्म देना, आपका अमल करना, ये तो हदीस ही है। अगर आप किसी काम आपके सामने किया गया, आप खामोश रह गए, आपकी खामोशी भी हुज्जत है इस बात के लिए कि वो अमल जायज था, वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मना फरमा देते। तो आपका बोलना छोड़कर आपकी खामोशी भी हुज्जत है। आपको जबरदस्त कुव्वतों वाले ने तालीम दी है, यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। वो बड़े जोर आवर हैं। वो सामने आ खड़े हुए जब वो बालाई ऊपर थे, फिर वो नजदीक हुए, फिर आगे बढ़े, फिर दो कमानों का या इससे भी कम फासला हो गया, फिर अल्लाह ने अपने बंदे की तरफ वही की जो कि वही करनी थी। जो उसने देखा था दिल ने उसको जुठलाया नहीं। जिक्र हो रहा है मेराज के मौके का। हजरत जिब्रील ने मेराज के मौके पर आपको वही की थी। ना आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हकीकत का मुशाहिदा कराया, गैब की खबरें दिखाई। आपने जो हकीकत का मुशाहिदा किया, आपको इस पर दिली इत्मीनान और यकीन था। आपको ये कतन गुमान न हुआ कि ये कोई दिन का ख्वाब है या नजर का धोखा है या किसी जिन और भूत का करतब है। आपने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में देखा, जिनके 600 पर थे। क्या तुम नबी से झगड़ा करते हो जो उन्होंने देखा है? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील को एक मर्तबा और भी देखा था, सिदरतुल मुंतहा के पास, जिसके पास जन्नतुल मावा है। हजरत मसरूक कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से पूछा, अम्मी जान, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा था? उन्होंने जवाब दिया, तेरी इस बात पर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। क्या तू समझ नहीं सकता कि 3 बातें जो तू इसे बयान करे वो झूठा है। जो शख्स ये कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा था, वो झूठा है। और उन्होंने फिर ये आयत पढ़ी, ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार। अल्लाह को आंखें पा नहीं सकती, अल्लाह आंखों को पा लेता है और वो बारीक बीन और खबरदार है। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को नहीं देखा। इस दुनिया में कोई शख्स अल्लाह को नहीं देख सकता। हजरत मूसा ने भी अल्लाह से दरख्वास्त की थी, बावजूद कलीमुल्लाह होने के। कयामत में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपना दीदार कराएंगे।
تو जिस शख्स ने ये बात कही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको देखा था, उसने हजरत आयशा के बकौल झूठ कहा। और हजरत आयशा ने अपनी इस बात की दलील के तौर पर कुरान मजीद की आयत पेश की कि ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक मर्तबा और भी देखा था सिदरतुल मुंतहा के पास, जिसके पास जन्नतुल मावा है, सिदरा बेरी का दरख्त है। इस मुकाम तक मखलूक का इल्म खत्म हो जाता है। उसी के पास जन्नतुल मावा है, जबकि सिदरा पर वो नूर छा रहा था जो कि छा रहा था। ना तो आपकी नजर चंधियाई और ना आगे निकल गई। उन्होंने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी जो अल्लाह ने आपको दिखाना चाहा। आपने एन वही देखा और वही समझा। क्या तुमने लात और उज्जा को देखा है और एक तीसरी देवी मनात को देखा है? क्या तुम्हारे लिए तो लड़के हों और अल्लाह के लिए तुमने लड़कियां रख दी? ये तो बड़ी भोंडी किस्म है, बड़ी ज्यादती वाली तकसीम है। ये तो सिर्फ नाम है जिनको तुमने रख लिया है, तुमने और तुम्हारे बाप-अजदाद ने। अल्लाह ने इनके बारे में कोई दलील नाजिल नहीं की। ये लोग सिर्फ अपने जन की पैरवी करते हैं और जो इनके नफ्स चाहते हैं। शिर्क का कारोबार हमेशा झूठे किस्से कहानियों, झूठी करामात पर चलता है, जो आज भी कब्रों के मुजाविर एक दूसरे को बताते रहते हैं ताकि उनके पेट का कारोबार चलता रहे। इनके पास उनके रब की तरफ से हदायत आ चुकी है। क्या इंसान के लिए कोई लिए वही है जिसका वो तमन्ना करे? ऐसा नहीं होता। वो अल्लाह ही ऐसी जात है जिसके पास दुनिया और आखिरत का इख्तियार है। इंसान तो मजबूर मखलूक है। और आसमान में कितने ही फरिश्ते हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी काम ना आएगी। हाँ, अल्लाह ताला जिसके लिए इजाजत दे और राजी भी हो। जबकि अल्लाह ताला ने फैसला फरमा दिया है कि अल्लाह ताला मुशरिकों से कभी राजी नहीं होगा। फरिश्ते जो कि अल्लाह की मुकर्रम मखलूक हैं, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे और मुशरिकों की सिफारिश नहीं करेंगे। कुफारे मक्का ने फरिश्तों को, जो अल्लाह की बेटियां थीं, अल्लाह का शरीक बना रखा था। उनका ख्याल ये था कि क़यामत वाले दिन ये हमारी सिफारिश करेंगे, जबकि फरिश्ते जो कि अल्लाह की फरमाबरदार मखलूक हैं, वो मुशरिकों की सिफारिश नहीं करेंगे। कितने ही फरिश्ते हैं आसमान में जिनकी सिफारिश कुछ भी फायदा ना देगी। हाँ, अगर अल्लाह चाहे, जिसके लिए वो चाहे और उसकी सिफारिश उसको पसंद भी आए। यकीनन वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते, वो फरिश्तों के ऐसे नाम रखते हैं जैसे नाम औरतों के होते हैं और उन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं। वो तो सिर्फ जन की पैरवी करते हैं और जन हक के मुकाबले में कुछ भी काम नहीं आता। ए नबी, आप उस शख्स से मुंह मोड़ लीजिए जो कि हमारी याद से मुंह मोड़ता है, उसकी आप परवाह न कीजिए। और वो शख्स दुनिया की जिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं चाहता। उनके इल्म की परवाज ये सिर्फ इतनी ही है। जो शख्स आखिरत का मुनकर है तो उसका मबलग इल्म तो दुनिया ही के गिर्द घूमता रहेगा। उससे आगे सोचने की उसे तौफीक ही नहीं होती। तो ए नबी, ऐसे शख्स की परवाह न कीजिए। ये उनके इल्म की परवाज है। बिलाशुबा आपका रब ज्यादा जानता है कौन राह गुम किए हुए है और वो ज्यादा जानता है कि कौन सीधे रास्ते पर है। और अल्लाह ही के लिए है जो आसमान में है, जो जमीन में है, ताकि वो बुराई करने वाले को उनके अमाल का बदला दे और जिन लोगों ने नेक अमल किए हैं उन्हें उसका अच्छा बदला दे। वो लोग जो कबीरा गुनाहों से बचते हैं और बेहयाई की बातों से बचते हैं, हाँ, छोटे गुनाह उनसे हो जाते हैं। तेरे रब की बख्शिश तो बहुत वसी है। कबीरा गुनाह हर वो गुनाह होता है जिसके बारे में कुरान मजीद में या हदीस में जहन्नुम की या अजाब की वईद सुनाई गई हो, या वो गुनाह जिनके लिए हद का लफ्ज कहा गया हो, ये कहा गया हो तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। या फिर वो गुनाह जो कि सगीरा हो लेकिन उन पर अगर इसरार किया जाए तो ये भी उसे कबीरा बना देता है।
वो लोग जो कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करते हैं और बेहयाइयों से, हाँ छोटे गुनाह, बेशक तेरा रब की मग़फ़िरत तो बहुत वसी है, वो तुम्हारे बारे में तब से जानता है जब तुम्हें जमीन से पैदा किया और जब तुम अपनी माओं के पेटों में बच्चे ही थे। तो अपने आप को पाक होने का दावा न करो, अल्लाह ज्यादा जानता है कौन मुत्तकी है। तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों से ये वादा किया है कि जो शख्स कबीरा गुनाहों से बच जाए, अल्लाह उसके सगीरा गुनाह माफ कर देते हैं। और ये सगीरा गुनाह खुद बखुद वजू के जरिए, नमाज के जरिए, रोजे के जरिए, जुमे के जरिए, उम्रे के जरिए, हज के जरिए माफ होते रहते हैं। हाँ, हज एक ऐसा अमल है जिसके साथ कबीरा गुनाह भी माफ हो जाते हैं, बाकी तमाम नेकियों के साथ सगीरा गुनाह माफ होते रहते हैं। तो अल्लाह ताला का ये वादा है कि मोमिन कबीरा गुनाहों से खुद बच जाए, सगीरा गुनाह हम माफ कर देंगे। अल्लाह ताला हमें हदायत की तौफीक अता قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح